بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک لونگ آپ کو چاہیے ہوگا اس عمل کے لیے۔ یہ عمل آپ کو اتنی دولت دے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک لونگ والا عمل آپ کی زندگی میں پیسوں کی اگر بارش نہ ہو تو پھر مجھے کہنا آپ کو اتنی دولت ملے گی۔ یہ دولت ملے گی نہ مہینوں میں، نہ گھنٹوں میں، نہ منٹوں میں، دولت ملے گی انشاءاللہ سیکنڈوں میں۔ دولت کو اپنے گھر آتے خود دیکھو گے۔ دولت کو حاصل کرنے والا ایک دانہ لونگ کا آپ کو چاہیے ہوگا۔ ایک لونگ آپ کو کس طرح یہ عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ میں، دبئی میں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آپ لوگ پہلے تو مکمل دیکھ لینا۔ ایک ایک سیکنڈ آپ کو ایک ایک اہم بات آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کیا، یقین مانے ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ 7-8 مرتبہ اس عمل کو کیا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اللہ پاک نے جب بھی یہ عمل کیا، جس دن کیا، صبح کیا تو دوپہر تک اللہ پاک نے مالا مال کر دیا۔ اور تو اور اس عمل کو، یہ لونگ والا جو عمل ہے، اس عمل کو میں نے اپنے جس بھائی بہن کو بتایا، ان کو جب میں نے یہ عمل بتایا، آپ لوگ یقین کریں ان کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ آج تک وہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ ایسا عمل ہے یہ لونگ کا کہ آپ کی اگر قسمت فوراً نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ اگر بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اگر آپ لوگ پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرض دار آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار آپ کو رات دن پریشان کر رہے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ لونگ والا عمل آپ کو اپنی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی، پوری زندگی میں، پوری لائف میں صرف ایک مرتبہ بھی اس طریقے سے اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیتے ہو، عزیز بھائیوں بہنوں، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آپ کو اس عمل کے لیے صرف ایک لونگ چاہیے ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ کوشش کرنا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر 1 منٹ کا یہ پورا عمل آپ کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں جو وقت لگے گا وہ وقت ہے 1 منٹ کا، بس 1 منٹ آپ کو نکالنا ہے۔ اور ایک لونگ آپ کو چاہیے ہوگا اپنے گھر میں سے۔ آپ دیکھیے گا ایک لونگ جو ہے، آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے لونگ کی، یہ لونگ ہوتا ہے، ہر بندے کو پتا ہوگا۔ ایک لونگ آپ کو چاہیے ہوگا اپنے سیدھے ہاتھ میں، ایک لونگ رکھ کے جو میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گا وہ پڑھ لینا وظیفہ۔ یقین مانو یہ عمل ابھی ختم نہیں ہوتا اور لوگوں کو دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کئی ایسے میری بہنوں اور بھائیوں کو، جب وہ ایسی ان کی حالت تھی کہ گھروں میں فاقے تھے، گھروں میں ان کے مفلسی تھی، لاچاری تھی، بالکل گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی دیواریں تھیں، جب انہوں نے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کیا، صرف ایک مرتبہ، ان کے حالات بدل گئے۔ پیسہ ان کے آگے پیچھے چاروں طرف سے جو ہے وہ ان پر پیسوں کی بارش ہو گئی۔ آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، آپ لوگوں کو یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ اپنے مشکل حالات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھر میں برکتوں کے لیے پورا عمل آخری سیکنڈ تک سمجھنا، تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ سکے کہ یہ عمل کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جانا۔ جس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہو، 1 منٹ کا وقت نکال لینا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس 1 منٹ آپ کو پوری توجہ اس عمل کے اوپر رکھنی ہے۔ 1 منٹ تک آپ کو کسی سے بالکل بات چیت نہیں کرنی، کسی کی طرف آپ کو توجہ نہیں کرنی، چپ چاپ خاموشی سے آپ کو ایک لونگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے، آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک لونگ رکھ لیں اور مٹھی بند کر لیں۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں، ایک لونگ اس میں رکھ لیں، بس مٹھی ٹائٹ باندھیں، لوز باندھیں، جیسے آپ کو باندھنا ہو، بس مٹھی بند کر کے ایک لونگ اس کے اندر ہو، اور آپ لوگوں کو جو میں بتاؤں گا وہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक पढ़ना हो, एक मरतबा दुरूद पाक सबसे पहले पढ़ना, एक लौंग अपने सीधे हाथ में रखना, मुट्ठी बंद करना और सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको करना क्या है, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक मरतबा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर उसी वक्त सेकंड टाइम दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, फिर उसी वक्त आप लोग तीसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और एक मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली। अब आपको क्या पढ़ना है, दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मरतबा आपको दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है। 2 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली और 6 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। अब यही अमल आपको तीसरी मरतबा दोहराना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़िएगा और आप लोग एक मरतबा सूरह कौसर दोबारा से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपने लौंग अपने सीधे हाथ में रखा, मुट्ठी बंद की, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया कोई सा भी। 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर 3 मरतबा यानी तीसरी टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ ली। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक वजीफा फौरन पढ़ना शुरू कर देना है। ये वजीफा बहुत मुजरब है। आज के अमल में पहले नंबर पर आपको ये वजीफा पढ़ना है। पूरा अमल मेरे बताने में वक्त लग रहा है, लेकिन करने बैठोगे 1 मिनट का ये पूरा अमल है, बिल्कुल आपका वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। तीसरी मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद जो वजीफा आपको पढ़ना शुरू करना है, उसकी जितनी तादाद मैं बताऊंगा उतनी ही तादाद में आपको पढ़ना है, कमी पेशी बिल्कुल नहीं करनी। जितनी बार कहूँगा कि जितनी बार पढ़ना है तो उतनी ही बार पढ़ना है। ये वजीफा है प्यारे भाइयों मेरी बहनों, या गनीयू, एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या गनीयू, फिर तीसरी बार पढ़ें या गनीयू। आपको ये वजीफा या गनीयू का 11 मरतबा पढ़ लेना है। 11 मरतबा जब इस वजीफे को पढ़ लो तो एक और वजीफा पढ़ना है। इसके बाद आपका पढ़ने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर करना क्या है ये समझिएगा, लौंग के साथ करना क्या है ये अच्छी तरह समझिएगा। आप लोग जब या गनीयू का वजीफा पढ़ लें तो एक और वजीफा जैसा कि मैंने आपको बताया पढ़ना है, वो वजीफा है या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी। ये वजीफा आपको या मुगनी का दूसरे नंबर पर पढ़ना है। पहले आपने या गनीयू का वजीफा पढ़ा, फिर या मुगनी का वजीफा आपको पढ़ना है। या मुगनी का वजीफा आपको 21 मरतबा यानी 21 टाइम इस वजीफे को आपको पढ़ना है। जब 21 मरतबा इस वजीफे को आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब पढ़ लें तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, पहले तो एक मरतबा आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ के जो पढ़ने का अमल है वो कंप्लीट कर लेना है। आखिर में भी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। यहाँ तक आपके पढ़ने का अमल मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है, आपके हाथ में मुट्ठी में आपके लौंग है, आपने हाथ मुट्ठी को बांधा हुआ है और मुट्ठी के अंदर लौंग है। आपको वो मुट्ठी अब फौरन खोल लेनी है। जब आखिर में दुरूद पाक पढ़ें तो अपनी मुट्ठी को खोल लें और इस लौंग पर एक मरतबा दम कर लें, फूंक मार लें एक मरतबा और फिर मुट्ठी बंद कर लें। फिर दोबारा से मुट्ठी खोलें और एक मरतबा इस लौंग पे फूंक मार दें। 2 मरतबा ये अमल करें। फिर तीसरी बार भी ये अमल फौरन करें, यानी मुट्ठी खोलें और इसमें लौंग पर फूंक मार दें एक मरतबा, फिर मुट्ठी बंद कर लें आप लोग। और अब आपको क्या करना है, अब आपको यही मुट्ठी
अपने जेब में डाल लेनी है। यही मुट्ठी अपनी जेब में डालें, अपने हाथ को मुट्ठी समेत, और अपनी जेब के अंदर जो है वो अपना हाथ खोल दें तो वो लौंग आपकी जेब में चला जाएगा। मेरी बहनें भी इसी तरह कर सकती हैं। अपने पर्स में, बड़ा कोई पर्स हो, उसमें जहाँ पर पैसे हों, जहाँ पर बरकतें हों, वहाँ पर या अलमारी पर ऐसी जगह पर मुट्ठी ले जाएं और वहाँ पे लौंग ले जाकर खोल दें। जहाँ पर आप पैसे रखते हों, रिस्क रखते हों, वहाँ पर आप लोग या पूरे घर में आप लोग किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ समझते हो, तो वहाँ पे जाके आपको, जहाँ पर आपको ये लौंग रखना हो, वहीं पे जाकर आप लोग मुट्ठी खोल लें और लौंग रख दें। बस लौंग रख दें साइड में ऐसी जगह पर। अगर जेब में रखते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर पर्स में रखते हैं तो आप वहाँ पे रख दें, और अगर अलमारी में रखते हैं तो मुट्ठी वहीं पर खोल लें और साइड में ऐसी जगह रख दें कि वहाँ से गिर ना जाए। आप लोग मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर फौरन अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को चाहें तो 1 मरतबा करें, चाहें तो अगर आपको एक ऐसा भी हो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे लौंग रखना हो, अगर दुकान पे रखना हो, घर में बहुत सी 3-4 जगहों पे रखना हो, तो ये अमल आप लोग काफ़ी दिनों तक, मतलब एक दिन आपने अमल किया तो अपनी अलमारी में लौंग रख दिया, ये पूरा अमल करके मुट्ठी खोल ली और वहाँ पे रख दिया लौंग। और इसी तरह घर में 4-5 जगहों पर आपको अगर लौंग रखना हो तो अलग अलग दिन आप लौंग अमल करके मुख्तलिफ जगहों पे लौंग रख सकते हैं। इस अमल को लाजमी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत आपका पीछा छोड़ दे तो इस अमल को भूल कर भी मेरे भाइयों मत छोड़ना। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।